This call is now being recorded. Yeah, good morning, everyone. In the last class, I introduced the concept of complex numbers, and then we considered the basic operations as a addition and subtraction of two complex numbers. Today, we are going to talk about the multiplication and division of two complex numbers and their basic properties. So, if you are given with two complex numbers z1 and z2, a1 plus iota b1 is the first complex number, and the second one is a2 plus iota b2, then we define their product like this. So simply we multiply them together and we open the bracket, and this way we get their product. So let me consider one simple example to explain the same. Given z1 is 3 plus 2 iota and z2 is 5 plus 4 iota, then how we are going to find their product? Normal multiplication. But let me just now consider this another question. I'm going to solve this now. So z1 into z2. So this is minus 2 plus 3 iota into 7 minus 5 iota. It's a usual multiplication. So minus 2 bracket open, 7 minus 5 iota, and then now it's turn off plus 3 iota into 7 minus 5 iota. Open the bracket. So minus 14 and then minus minus plus 10 iota, then plus 21 iota, and then minus 15 iota square. This is very important observation, that at the end I am getting this iota into iota is iota square, and do remember iota square is minus 1. That's the basic definition. So minus and minus will make it plus 15. Now simply combine the like terms. So this and this is combined like terms. So 1 plus 31 iota, which is your required answer. So we also observe that product of two complex numbers is again a complex number. Hence, we say that the multiplication satisfies the closure property, as we have seen in the case of addition and subtraction of two complex numbers. With practice, you can simply avoid writing this particular step, this one. Even if you do not write, or even if you do not write this step, that is absolutely okay. Direct open the bracket, use the idea of I square as minus 1, and you can get the answer just in 2 steps. But as a beginner, at least in the beginning of मतलब ये practice, 2-3 questions जब करें, show the complete steps. Few simple properties of multiplication as mentioned about the closure property. Same way, commutative property, z1 into z2 is equal to z2 into z1. Associativity, if three complex numbers are multiplied, hardly matter the order in which you are multiplying, just that say z1 z2 को पहले किया, फिर उसको z3 से कर दिया, और फिर क्या करा यहां z2 z3 को z1 से कर दिया मल्टीप्लाई. Next term is very important, existence of the multiplicative identity. Now, what do we mean by multiplicative identity? Z को as a complex number किस complex number से multiply करें कि आंसर सेम रहे. So clearly that is 1, and 1 as a complex number is 1 plus 0 iota. Next term, most important, multiplicative inverse.
So if z is a complex number a plus iota b, inverse of this is actually z inverse denoted by 1 by z, and this is given by a minus iota b upon a square plus b square. So what basically happened here? Consider 1 upon a plus iota b, rationalize this with its conjugate. याद रखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट हमने डिफाइन किया था a माइनस आयोटा b. And why this rationalizing is important? Whenever you are expressing any complex number, it should be in a standard form. And by standard form, we mean iota should be only in the numerator. It should not be in the denominator. तो इसमें आयोटा डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इसे आपको रैशनलाइज करना रहेगा. Consider this simple question. Find the multiplicative inverse of this. Let z is 2 minus 3 iota. This imply 1 by z or z inverse क्या हो गया? 1 upon 2 minus 3 iota. But as mentioned, iota should be in the numerator. So you are going to rationalize with its conjugate. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, सेम आ गया, ओवर. If I look carefully, what exactly is here in the denominator? A minus b into a plus b, which is a square minus b square. A square minus b square. But at the same time, remember when I open the bracket, so this is 4 minus. This is 9 iota square, and iota square तो -1 होता है, so minus and minus plus हो जाएगा. 3 का square 9, 2 plus 3 iota by 13. It is better if you express this in the standard form a plus iota b. That would be your required answer. Any doubt to anyone? Everyone, please mark your attendance. Present. Next is simple distributive law. For complex numbers z1, z2 and z3, z1 into z2 plus z3, तो वो यूजुअल जैसे नंबर्स में होता था, you just open the bracket. So this is the basic thing we already have discussed. एक बार quickly check कर लीजिए. Next is about the division of two complex numbers.
let the z1 and z2 are given two complex numbers, and the second complex number z2 is non-zero, obviously, because division by 0 is not defined. So how we define z1 in by z2? It is basically z1 into z2 inverse. Inverse means the multiplicative inverse. So let's consider simple question to understand this. So z1 by z2 निकालना है. You are given with z1 and z2 here. So 6 plus 3 iota divided by 3 minus iota. But as already mentioned, iota should not be in the denominator. So I am going to rationalize this, and clearly the rationalizing factor would be 3 plus iota. The conjugate of 3 minus iota is taken. Now it is a simple multiplication. In the numerator में ये दोनों multiply, and in the denominator it is basically a square minus b square. 10. Yes. और ऊपर आप सिंपल अब ब्रैकेट ओपन करिए. मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक स्टेप स्किप करूंगा. 6 3 18, देन प्लस 6 इंटू आयोटा. नेक्स्ट 3 आयोटा की बारी आ गई, 9 आयोटा, और फिर 3 iota into iota will give me -3, because iota square is -1. So 3 into -1 is -3. नीचे clearly again iota square is -1 से ये आ गया 15 plus 15 iota by 10. One can easily note, I can take 5 common और वो कैंसल कर देते हैं. So that I can write this as 3 by 2 plus 3 by 2 iota in the standard form as a plus iota b, your required answer. So we have a clear, simple observation that the division of two complex numbers is again a complex number. So hence closure property satisfied. What about commutative property? Is z1 divided by z2 equals z2 divided by z1? No, sir. Right. तो इसका मतलब it is not commutative. Okay, Anush, no problem. Now, some identities on the complex numbers, basic formulas, and recall what you did in class 6, 7th, 8th for the real numbers, starting with a natural number. Idea bar extended to the real numbers also. So a plus b का whole square क्या था? A square plus b square plus 2ab. Same way it holds true for the complex numbers z1 and z2. Same way z1 minus z2. थर्ड वाला ऑब्वियस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले रूल से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इवन फर्दर ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सेट, तो a प्लस बी का होल क्यूब जरा सोचिए क्या होता है. a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो चेक करिए ये और ये सिमिलर हैं, बस यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, इन्हें कॉमन लेकर बाद में लिख दिया है. सो इट हार्डली मैटर्स. तो इफ आई हैव z1 एंड z2 एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मैं फार्मूला क्या लिख सकता था? z1 क्यूब प्लस 3 z1 स्क्वायर इंटू z2 प्लस 3 z1 इंटू z2 का स्क्वायर एंड देन प्लस z2 का whole cube. So the way you learned the a plus b whole cube, exactly the same way we have the formulas number 4th and similarly 5th also.
Based on this, starting is very simple for NCERT exercise 5.1. Very basic and simple exercise is given. So more focus based on the questions from assignment वो हम देखेंगे. But starting with a simple questions, express each of the complex number in the form of a plus iota b. So check it out. First question. सिंपल है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 से 5 कैंसल, माइनस 3. आयोटा स्क्वायर विच Yes, इज sir. 3. 3. बट चेक करिए आंसर क्या लिखने वाले हैं हम. 3 plus 0 iota. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर लेकर आना है. We already have discussed the powers of iota. Do in your homework. 4 के मल्टीपल्स को अलग करके सिंपली सीख चुके हैं. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग ओवर हेयर. फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. जस्ट ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस एंड देन माइनस 2 minus 7 iota. यस, तो 2 माइनस 7 आयोटा. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चंस. सेवंथ क्विकली देख लेते हैं. इट इज अबाउट, सिर्फ ब्रैकेट्स थोड़ा ढंग से इस तरह से लिख दिया है, बट यू जस्ट नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो आप चेक करिए, इफ आई फॉलो द बॉड मास, तो इस ब्रैकेट में अगर मैं चेक करूं तब क्या हो जाएगा. सी अटेंडेंस का टाइम ओवर हो चुका है 5 मिनट्स पहले, और नहीं 5 मिनट्स भी नहीं, 10:02 पे हुई थी. तो ये नहीं है कि आप 7 मिनट्स के बाद या कभी 6 मिनट के बाद कोई भी अटेंडेंस मार्क कर रहा है. सो दिस विल नॉट बी काउंटेड एज योर अटेंडेंस. सो ब्रैकेट में क्या होगा, ये और ये लाइक टर्म है, तो 1/3 प्लस 4 इन्हें कंबाइन कर दिया. फिर ये और ये देखे तो आयोटा के साथ 7/3 प्लस 1/3 कर दिया. ये अभी एज इट इज. आप एक ही स्टेप में थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल. नाउ यू जस्ट टेक द एलसीएम, तो 13/3 प्लस 8/3 आयोटा. आयोटा बाद में लिखना मैं प्रेफर करता हूं, और माइनस हो रहा था ये. अब सिंपली ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन द लाइक टर्म्स, तो 17/3 एंड देन कितना आ गया ये 8/3 माइनस 1 विच इज 5/3 iota as your required answer. तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस्ड पिछली क्लास में ही हो चुका था. नाउ चेक दिस आउट. जैसे ये 8th क्वेश्चन है, वन वे a माइनस बी की पावर 4 की एक्सपेंशन, a पावर 4 प्लस, एनीवन पता है इसकी एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं. इसके लिए पास्कल्स रूल अगर आपने किसी ने सुना हो, पास्कल्स ट्राइंगल यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, उससे हम इसका फार्मूला डराइव करते हैं. बट बाइनोमियल थ्योरम एटलीस्ट 11th के अभी रिड्यूस सिलेबस में कट चुका है, सो आई विल नॉट गिव द फोकस ऑन दिस. हम एक सिंपल लॉजिक की बात करेंगे. दिस इज नथिंग बट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर. 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 ऐसे, सो दैट पहले इसे सॉल्व करते हैं. ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सर a minus b की पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा. हाँ वो भी हो जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट, बट द प्रॉब्लम मैं अभी आपको बताता हूं. चेक इट आउट. ये आ गया, ये कितना हो गया 1
iota square is -1 and -2 iota का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसल, और ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहां पर तो a माइनस बी की पावर 4, मैं आपको क्विकली एक बार एक चीज दिखा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से समझिए। a प्लस बी की पावर 1, a प्लस बी की पावर 2, a plus b whole cube, and so on. This is of course a plus b. This is a square plus 2ab plus b square. This is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. एंड अगर मैं इसी आइडिया को एक्सटेंड करता हूं तो ये हो जाता है a पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4. So one way you learn this formula directly and apply this. अब इसमें अगर आप इनको कोफिशिएंट्स को ध्यान से नोटिस करें, कोफिशिएंट यहां क्या लिखा है 1, यहां क्या है 1 2 1, फिर 1 3 3 1 1 4 6 4 1. So if I write all these coefficients separately, और ऊपर चलो मैंने लिखा नहीं था, बट a प्लस बी की पावर 0 वो तो 1 ही हो जाएगा, तो 1, और मैं सिर्फ कोफिशिएंट्स को लिख रहा हूं 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर कोफिशिएंट्स क्या थे 1 4 6 4 1. If I look at the arrangement, I can easily observe it is bounded by ones, और अंदर वाले नंबर्स को अगर अब आप ध्यान से देखते हैं तो किस तरह से लिखे गए थे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, इनको ऐड करते चलो लाइक दिस, आई विल गेट द नेक्स्ट कोफिशिएंट्स. तो 3 प्लस 3 6 हो गया, फिर 3 प्लस 1 4 हो गया. एंड इफ आई एक्सटेंड दिस आइडिया, आई एम श्योर अगली लाइन क्या आएगी 1 5, कैसे, इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम 10, फिर इन दोनों का सम 10, फिर इन दोनों का सम 5, बाउंडेड बाय 1 ओनली. और अगर ये क्लियर हो गया, तब मैं अगर a प्लस बी की पावर 5 की एक्सटेंशन लिखना चाहूं, एक्सपेंशन सॉरी, तो वो अगर आप ध्यान से देखें कोफिशिएंट्स तो आ गए, और ऑब्जर्व जैसे ये है, इसमें क्या हुआ है a स्क्वायर, और एक a की पावर कम हुई है, b की इंक्रीज हुई है, फिर नेक्स्ट टर्म में a की पावर 0 हो गई, खत्म ही हो गई, और b की एक पावर इंक्रीज हो गई है. यहां पर एक बार जरा ऑब्जर्व करो क्या हुआ था, a की पावर हाईएस्ट थी 3, फिर क्या हुआ a की एक पावर कम हो गई, a की एक पावर कम हो गई है और b की इंट्रोड्यूस हो गई, फिर a की एक और पावर कम, b की इंक्रीज हो गई, और फिर a की पावर खत्म हो गई और b की पावर हाईएस्ट आ गई. दिस इज हेल्पिंग मी टू गेट a प्लस बी की पावर 5, और अब वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. पहली टर्म तो क्लियर है, a पावर 5 आएगा, प्लस कोफिशिएंट्स यहां से उठाओ, और a की एक पावर कम, b की एक पावर इंट्रोड्यूस कर दो. नेक्स्ट ये 10 उठाऊंगा, a की एक पावर कम, b की एक पावर एक्स्ट्रा कर दो, बढ़ा दो. फिर इस 10 की बारी, a की एक पावर कम, b की बढ़ा दो. फिर इस 5 की बारी, a की पावर कम कर दिया, b की पावर बढ़ा दिया.
और लास्ट में 1 का मतलब b की पावर 5. So in a single step, I will get the formula for a plus b की power 5. That way a plus b की power 6 and so on. वो हम बात कर सकते हैं. अगर इनके बीच में माइनस होता, माइनस का मतलब मान लो यहाँ a plus b की पावर 4 के बीच में a माइनस होता, तो ऑल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस के हो जाते. So that way we can again talk about binomial in detail, but that is not required. So someone was saying कि अगर मैं a plus b की पावर 4 का फार्मूला लगा दूं, ये फार्मूला है, तो अगर आप ये फार्मूला यहाँ लगाते हैं, that is okay, no problem. a की पावर 4, राइट, बड़ा माइनस वाला है, तो माइनस 4a³ इंटू b प्लस 6a² इंटू b स्क्वायर प्लस 4ab³ हो जाता और प्लस b की पावर 4. तो यू कैन एक्सपैंड दिस. सारी वैल्यूज हमें पता है. यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर. तो दैट इज ऑल्सो ओके. बट हेयर इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन. स्क्वायर का स्क्वायर लिखने से calculation is becoming little bit easier. That is why I am recommending this approach. Else you can go for any method. I hope the idea is clear. यहां मेरे पास चॉइस नहीं है क्योंकि ये क्यूब है, तो आई हैव टू अप्लाई विच फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ a माइनस b का होल क्यूब, विच इज a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³. So let's simplify. तो 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब वुड बी, पहली टर्म क्या होगा, a³, फिर माइनस 3a² इंटू b. कंपेयर करो, a इज 5, b इज 3 आयोटा, तभी तो मैं ये वाला फार्मूला लगाऊंगा. तो कहां तक लिख दिया, फर्स्ट 2 टर्म्स आर रिटर्न. अब बारी आई प्लस 3ab² and finally minus b³. Let us now simplify this further. 5³ is 125 minus 3 into 25 into 3. न्यूमेरिकल वैल्यू चलो मैंने अलग से लिख लिया. ये 3 into 5 इंटू, ये याद रखिए, ये आएगा -9. आयोटा स्क्वायर इन्वॉल्व होगा विच इज -1, और ये आ गया 3 का क्यूब. और याद रखिए आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा. दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा माइनस आयोटा, so that it will become 125 minus 225 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस 135 and then minus minus plus 27 iota. Combine the like terms. तो फर्स्ट एंड थर्ड आ गए रियल पार्ट्स वाले, तो -10
and then minus 198 iota, which is your required answer. So even अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब भी कर रहा हूं, आंसर विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. फाइनल आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही आएगा. I might have done some silly mistakes, so please आप भी साथ में चेक कर लीजिए and do let me know if any step is wrong. Any doubt in applying the formula or usage of this a minus b whole cube? डायरेक्ट अप्लाई करना है जैसे आपने 9th में किया था. बस अब यहाँ आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, वो सब जो इन्वॉल्व होंगे उनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये तो हो ही चुका है. लेट मी फोकस ऑन दी फर्स्ट पार्ट ओनली. Rationalize. Yes. So let me call this as z. कहा नहीं था, but I would always recommend complex number है ये, तो z में लिख दिया. अब rationalizing factor नीचे वाली टर्म से बनेगा as आयोटा की जगह -2 आयोटा कर दिया, माइनस आयोटा कर दिया, so that it is its conjugate. The first and the most important step, और कॉमन यूज करेंगे ये. अब क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई. तो अगर आपकी चॉइस है, एक स्टेप एक्स्ट्रा ये लिख भी दो, इट डजंट हार्म, ये लिख दिया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई वुड रिकमेंड ये स्टेप जरूर लिख दीजिए. नाउ यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 प्लस 5 √2 आयोटा, और फिर प्लस, अब इसकी बारी, √2 आयोटा, एंड देन इट विल बी, लास्ट टर्म क्या आएगी सोच के बताइए. तो -2 आयोटा. आयोटा आएगा क्या फिर? -2. इट्स ओनली -2. √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2, और आयोटा इंटू आयोटा -1. तो आपने इन चारों को ही तो मल्टीप्लाई करा है, तो इट इज -2 ओनली. और नीचे 1 कितना आ जाएगा? +2. +2 ओनली. आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड दिस इज 3 प्लस, ये दोनों लाइक टर्म है, 6 √2 आयोटा by 3 common and cancel, which is your required answer. I hope it's clear to all of you. You can always ask अगर कहीं भी कोई डाउट आता है. बोथ आर सिमिलर. हम a माइनस बी क्यूब टाइप कर चुके हैं ऑलरेडी. सो क्विकली सोचिए 9th क्वेश्चन. दिस इज a प्लस बी का होल क्यूब. तो एक फॉर्मूला, चलो मैं फिर भी कहता हूं, साथ में लिख लीजिए. a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. दो सोचा जाए तो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, z1 प्लस z2 टाइप. बट क्योंकि
अंदर ये अलग अलग से मैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख रहा, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो ये क्या दे देगा, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड प्लस b का होल क्यूब। Open the bracket, use the usual way, you will have your required answer. Find the multiplicative inverse of each of the following. So check करिए, if z is √5 plus 3 iota, so multiplicative inverse is actually 1 by z, ये आ जाएगा, और आयोटा की वजह से यू जस्ट नीड टू रैशनलाइज दिस। तो अब ये मैं क्विकली लिख देता हूं, ये और नीचे आ जाएगा 5 + 9, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई। और सो दैट √5 minus 3 iota by 14 as mentioned, prefer to write in the form of a plus b iota. And this is the last question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ही ऐसे लग रहा है, जबकि अगर आप देखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लाना है, ऊपर इट इज अ मल्टीप्लीकेशन, नीचे डायरेक्ट ओपन द ब्रैकेट है, तो ऊपर कितना आ गया, इफ यू नोट केयरफुली, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b² डिवाइडेड बाय, व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, सर आंसर में बस आयोटा आएगा। यस, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया, ये √3 से √3 कैंसल, ऊपर कितना आ रहा है 9 प्लस 5, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस कर देगा, और नीचे 2√2 आयोटा विच इज 14 by 2√2 iota, 7 by √2 iota, बट अगेन आयोटा से रैशनलाइज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आयोटा से रैशनलाइज करते ही नीचे आयोटा स्क्वायर विच इज -1 हो जाएगा, एंड -7 आयोटा बाय √2। आप √2 आयोटा से भी रैशनलाइज करके दिखा सकते थे, बट अगर √2 से नहीं भी करेंगे दैट इज ओके। फाइनल आंसर में आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। So complete NCERT exercise in your homework, and this is one question for your homework. और एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ एक इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। Mark your attendance. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Good day. थैंक यू सर। Yeah, thank you. थैंक यू सर। ये वाला क्वेश्चन भी चलो मैं भेज दूंगा होमवर्क में, ओनली 2 questions. Yes. Yes, sir. Yeah, thank you. थैंक यू सर। Yeah, thank you.